So let's begin with the discussion of QA sectional test 5. एक बार पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, then we'll go ahead with the discussion of the questions. So please note down the questions to be divided into 3 parts. Question number 1 seems like ratio या profit loss से कुछ है, could have been done, part 1. Question number 2 time and work, part 1. Question number 3 geometry, part 3. Question number 4 functions, part 3. Question number 5 seems to be something like number system or something like that, part 3. Question number 6 part 3 geometry है. Question number 7 सर्कुलर रेसेस से रिलेटेड कुछ लग रहा है, एक बार स्किप करते हैं, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉफिट लॉस पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीपल लॉग बट थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, थोड़ा स्किप्ड इट, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 10th नंबर सिस्टम पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 11th रेशियो करना है, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 12th अगेन आई कुड हैव स्किप्ड इट बिकॉज़ कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है, पार्ट 2 में डाल दीजिए एज ऑफ नाउ. क्वेश्चन नंबर 13 ज्योमेट्री पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 14th मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 सीक्वेंस स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 2 में डाल दीजिए, ऑल्दो वी आर डन विद इट बट फॉर नाउ लेट्स स्किप इट. Question number 16, I guess time speed distance could have solved it, part 1. Question number 17, quadratic equations part 2 में डालते हैं एक बार. Question number 18, time and work part 1. Question number 19, I could have skipped it because number of integral values पूछा है, part 2 में डालते हैं. Question number 20th geometry part 3. Question number 21, I guess percentage से related है, could have solved it, या फिर set theory से related लग रहा है, could have solved it, part 1. And question number 22 part 1 because profit loss से related. So let's start with it. सबसे पहले पार्ट 1 में कौन सा है? Anyone? ए भाई सोना है. भाई कोई है क्या? क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोल देने का है ना, क्या 100 बार क्या बुलवाते हो इस चीज के लिए? समझ में ही नहीं आता है तुम लोग. क्वेश्चन नंबर 1, एनीवन हैविंग अ डाउट? जल्दी से बोलिए. नो सर. एनीवन यस सर. हैव अ डाउट? विल जस्ट फिगर इट आउट. देखते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 1. देखिए, a bookseller sells 3 types of notebooks ABC. The product of prices of the 3 is equal to 6400. The price of A and B are in the ratio 2:5. पहले वाले का 2x दे रखा है, दूसरे वाले का 5x दे रखा है, तीसरे वाले का कुछ नहीं पता, और तीनों का प्रोडक्ट है 6400. If the bookseller decides to increase the price of A and B by 12 each, keeping the price of C unchanged, 2x plus 12, 5x plus 12, y, then the product is changed to 25600. यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर. नो सर. हम आप एबीसी बताना है. देखिए होता क्या है कि when we are having multiple variables, like there are two variables x and y in this case, तो या तो एक इक्वेशन बनता है 2x plus 3y equal to something, या एक होता है 2x into 3y equal to something. So whenever it's a 2x plus 3y वाला कॉन्सेप्ट, जब भी एडिशन में दोनों वेरिएबल्स होते हैं, आप जनरली उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालते हैं, और जहां पे वो वेरिएबल्स प्रोडक्ट में आ जाते हैं, आप उनको divide करके आंसर निकालते हैं. So in this case, the variables were in product. You would have divided the two equations. You would have got 1/4 on the right hand side. Y से y cancel हो गया. So when I'll cross multiply, it's 10x square into 4, 40x square equal to 1 into this. And I'm opening the brackets. I'll have 10x square plus 24 and 60, 84x plus 144. So on solving, I'll have 30x square minus 84x minus 144 equal to 0. I could have taken 6 common. I would be left with 5x square minus 14x minus 24 equal to 0. यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए. नो सर. नो सर. So I have to split 14 in 120, right? Anyone? पॉजिटिव में आ जाएगा, x4 आ जाएगा फिर. हाँ, I would have done it like minus 20x plus 6x minus 24 equal to 0. So I would have taken 5x common. It is x minus 4, and this will be 5x plus 6. So I would have got x equal to 4 or minus 6/5. प्राइस नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो प्राइस x equal to 4 लेना पड़ेगा. जैसे ही x 4 पता चला, तो मेरा पहला प्राइस हो गया फर्स्ट ए आर्टिकल का 2x, दैट इज 8. बी आर्टिकल का 5x, दैट इज 20.
अच्छा 8 into 20y equal to 6400. So I would have solved this. This is 800. This is 140. So C का price हो गया 40. Sorry, it's 40. So what they're asking you is the sum of original prices. 40 and 20, 60 and 8. 68 would have been the correct. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Anyone Yes, having a... sir. Yes, sir. देखिए इस पर my selection after solving the entire question I feel it was a wrong selection. मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहिए था, बट मैंने केवल ऊपर से डेटा देखा और मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया. दिस इज अ कॉमन मिस्टेक बीइंग रिपीटेड बाय यू गाइस एज वेल. एट टाइम्स आपका सिलेक्शन गलत हो जाता है. दिस कैन बी वन ऑफ द केसेस. मेरे हिसाब से आई सिलेक्टेड इट रॉन्ग एंड इट शुडंट हैव बीन अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, राइट? गोइंग अहेड, नेक्स्ट Question 2. बताने का है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. एनीवन हैविंग अ डाउट कैन आस्क, एल्स वी गो. नो वन? प्लीज नेक्स्ट. 8th. एनीवन हैविंग अ डाउट? प्रॉफिट No, लॉस का sir. क्वेश्चन है. No, sir. नो वन? किसी का भी डाउट नहीं है पक्का? सर एक को बता दो, ये डिसऑनेस्ट वाले. देख लेते हैं सर. Okay. A dishonest shopkeeper mixes 250 gram of sand in 1 kilogram of rice. ठीक है. सीपी की बात करते हैं. आपने 1 kg राइस लिया, 250 ग्राम सैंड लिया, and 350 gram of the mixture is spilled during transportation. He then uses a particular this. If cost of rice is rupees 70 per kilogram and sand cost 20 per kilogram, तो राइस हो गया 1 kg 70 रुपीज का. ये 20 पर किलोग्राम है. 250 ग्राम कितने का होगा? 20 पर किलोग्राम. 250 ग्राम का कॉस्ट क्या होगा? 0.25 5. into 20. दैट इज 5 रुपीज. तो हाँ. टोटल सीपी आ गया मेरे हिसाब से 75 रुपीज. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. No, sir. ये कितने का है? 1.25 kg का है. Hmm. अब नाउ व्हाट हैपेंड? 350 ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज स्पिल्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. तो आपके पास 1.25 kg था, उसमें से 0.35 kg तो आपका स्पिल हो गया. Hmm. सो यू आर लेफ्ट विद 900. 900 ग्राम और 0.9 kg. He then uses the faulty balance that reads 1 kilogram for 800 ग्राम. फॉल्टी बैलेंस में क्या होता है? जैसे ही आप 800 ग्राम डालेंगे वो शो कितना करेगा? 1 1 किलोग्राम. kilogram. तो अगर आप 900 ग्राम डालेंगे तो वो शो कितना करेगा? 1 by 8 1.1. Yes, sir. 1.125 किलोग्राम. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. आपने बेचा सेलिंग द मिक्सचर एट लिस्टेड कॉस्ट प्राइस 70 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से आपने बेचा, बिकॉज यू आर सेंडिंग एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस. कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस 70. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आएगा? 78.75. 78.75. 75. मतलब आपका सीपी ये था और आपका एसपी आ गया 78.75. आपका प्रॉफिट कितना है? 5%. 5% आ जाएगा. 3.75 on 75 into 100, which is 5% profit. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 8th के बाद 11th. बताने का है किसी को? No, sir. No, sir. Shall we go ahead? Sir. चलो Yes, sir. नेक्स्ट 14th. 14. बताने का है किसी को? हाँ एनीवन? सही बता रहे हो. Yes, sir. Yes, sir. बताना है. A worker works for 7 days on a project that has two tasks X and Y. Starting from the second day, his daily wages for the task increases by 8% of the first day's wages for the work for X, and his daily wages for Y task increases by 5% of the first day wages for Y. The total wages of the worker for the first 3 days is this, and for the last 3 days is this. What was workers' average wage per day during the week? Okay. एक सेकंड. कैसे किया? किसी ने किया कि ये? So मतलब ट्राई किया था वैसे 100x ले लो और एक 100y
तो उसको 8% से बढ़ा दिया 3 days के लिए, उन दोनों को टोटल करके 4140 की इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, देखिए x के लिए आपको मिलता है पहले दिन 100x, दूसरे दिन 108 108 108 तीसरे दिन 116 y के लिए मिलता है 100y, देन 105 105 एंड 110 10.25। हाँ नहीं, एवरी टाइम इट्स अ 5% इंक्रीमेंट ऑन फर्स्ट डे सैलरी ओनली, ओके। तो सक्सेसिव नहीं लगेगा। अच्छा you'll add the two equations, you'll have 324x plus I guess 315 315y, और इसका वैल्यू दे रखा है आपको 4140। ठीक है, फोर्थ डे का वेजेस बताएंगे? so 124 124x 124x। ये दोनों काम का नहीं है, फिफ्थ से चालू करते हैं, लास्ट के 3 डेज की बात कर रहे हैं। 132x 140x 140 148x 48 and here it would have been 1 20 plus 1 25 5 plus 1, 130 30। इनका सम करते हैं, मेरे हिसाब से आएगा 420x and 375y। कोई दिक्कत? नो no सर। sir You would have calculated x and y, you would have got the answer, right? yes sir Anyone having a doubt? नो सर। no sir ठीक है, अगर इसी को कोई दिमाग लगा के करता तो कैसे कर सकता? सर मतलब ये बीच वाले डे का और इनका डिफरेंस का इक्वल हो जाता है क्या? अरे दिमाग लगा के करता तो तुम लोग कर ही नहीं पाते ना, तुम्हारे पास दिमाग कहाँ है? यार एक बात बताओ, x का वैल्यू ऑब्जर्व करो, 100 108 116 124 132 140 148, डोंट यू फील लाइक इट्स एन AP? यस सर। yes sir सेम फॉर y, यस सर। yes sir so don't you feel like x plus y would have been an AP? दो AP को ऐड करूंगा तो AP आएगा। हाँ है ना? हाँ सर आ रहा है। AP का पहले दिन 3 दिन पता है, आखिरी 3 दिन पता है। आपको पता है क्या करने का था? इन दोनों को ऐड करने का था, टर्न्स आउट टू बी 9240, 6 से डिवाइड करने का था, यू वुड हैव गॉट द आंसर। ओके सर। क्लियर टू ऑल? yes sir Yes, sir. ये है मेंटोस जिंदगी, खाते तुम लोग हो नहीं। समझ में आया? ये लॉजिक Yes, बैठा क्यों yes बैठ sir रहा है? अच्छा, सेम केस में अगर मैं लास्ट के 2 दिन देता और स्टार्टिंग के 3 दिन देता तो बैठ पाता क्या? No, sir. No, sir. नहीं बैठता, क्योंकि आपने जब फर्स्ट और अभी एपी में सिखाया था, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, सेकंड लास्ट को ऐड करो, सम हमेशा सेम आता है। yes sir तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज यू हैव टेकन 3 फ्रॉम फर्स्ट 3 फ्रॉम लास्ट, यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। If you might have taken 3 from first and 2 from last, you were not able to apply this concept. Please don't apply in that case. I hope you must have got a clarity. समझ में आ गया? Shall we go ahead? yes sir yes yes sir I feel like less than 1 minute question. Yeah. Yes, sir. Going ahead. 14 के बाद next. 16 16th बताने का है किसी को? no sir Anyone? No, sir. पक्का? चलो बढ़िया। Next. 18 18th बताने का है किसी को? नो सर। No, no sir. sir बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नहीं बता। Next. 21st Anyone? yes sir Yes, sir. यस सर। There are 40 students in a class. All the students play at least one of the 3 games among football, cricket, and badminton. Anyone who plays football also plays cricket. No one plays
football and badminton, and 30% of the students play cricket and badminton. The number of students who play exactly one of the three games is more than the number of students who play more than one of the three games. If the number of students who play only badminton, this. चलो ठीक है, करके देखते हैं. वेन डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा. Badminton, football, or cricket, right? Yes, sir. There are 40 students in the class. All the students play at least one of the three games. मतलब ये वाला डेटा है 0, जो एक भी गेम नहीं खेलता. Anyone who plays football also plays cricket. जो भी फुटबॉल खेलेगा उसको क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा. बराबर? Yes, sir. बराबर. अगर ऐसा है तो ओनली फुटबॉल कितना होगा? 0. Zero. ओनली फुटबॉल एंड बैडमिंटन ये कितना होगा? Zero. 0. Zero. जो भी फुटबॉल खेलेगा उसको क्रिकेट खेलना जरूरी है. ये दो वैल्यू 0 हो गई. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. No one plays football and badminton. 30% of the students play cricket and badminton. 30% of students. बोलो. 12. 12. Play cricket and badminton. अगर क्रिकेट एंड बैडमिंटन ये पूरा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, दोनों कंबाइन दोनों होकर आएंगे. दोनों हाँ, आएंगे. सॉरी दोनों आएंगे सर. कंबाइंड होकर 12 आएगा. तो मैं लिख हम्म. लेता हूँ बैडमिंटन एंड क्रिकेट 12 है. अभी बाद में फिल करेंगे इसको. The number of students who play exactly one of the three games is more than the number of students who play more than one of the three games. ठीक है. And if the number of students who play only badminton is minimum, then what can be the maximum number of students who play both cricket and football? Cricket and football. क्रिकेट फुटबॉल कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? यहाँ. यार एक लाइन का मतलब मुझे और समझा दो. नो वन प्लेज फुटबॉल एंड बैडमिंटन. इस लाइन का मतलब क्या है? फुटबॉल एंड बैडमिंटन का इंटरसेक्शन 0 है. अच्छा. सो व्हाट यू फील अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट. वो भी 0 होगा. 0 होगा. यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. No, sir. मतलब No, ये sir. 12 आ गया मेरा. हाँ. अब मेरे पास तीन अननोन वैल्यूज हैं, ए, बी और सी. बराबर? Yes, sir. पहली हाँ. चीज, ए बी सी का सम कितना होगा? 28. 28. दूसरी बात, अब आगे चलते हैं. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. Is more than. No, sir. Is more than. Number of students who play more than one of the three games. 12 plus C. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, No, sir. आपको क्या करने का है? If the number of सर इसको students C के टर्म्स में इक्वेट करके कर सकते हैं क्या? मतलब A plus B equals to 28 minus C और वो ग्रेटर देन के अगर उधर पुट कर दे तो अपन कर सकते हैं मेरे हिसाब से. Number of students who play only badminton is minimum. Only badminton मतलब A को मिनिमाइज करना है. Then ये कितना होगा? चलो ठीक है. So you mean to say A plus B को 28 minus C लिख दो. Yes, sir. So 28 minus C is greater than 12 plus C. So 2C is 8. less than 16. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आएगा समझ में? आ गया sir. So C is less than 8. हाँ. Maximum number of students who play both cricket and football. Cricket and football C था. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बोल रहे हैं C Yes, less than sir. 8 है. 7. और C less than 8 है तो maximum कितना हो सकता है? 7. 7. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Again, a wrong selection of question. Ideally, this That is something that I should have selected. Yes, yes, ma'am, please.
7 को मतलब बाकी कहीं पर पुट करके कुछ सर्टेनिटी कुछ नहीं लेनी, मतलब आपका बस C <8 है तो आपका 7 आंसर हो गया, तो ऊपर में कहीं पर इक्वेशन में डाल के देखना नहीं है कि आपकी जो मैक्स मिनिमम बैडमिंटन वाली सिचुएशन में सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं मैंने आंसर कैसे निकाला। हाँ मैडम यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड था सही वाला। क्लियर है? यस सर। निकाल दी। चलो आपको कहाँ पे कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है बोलिए। सर ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली बैडमिंटन इज मिनिमम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली बैडमिंटन बोले तो ए को मिनिमाइज करने का है, हम्म। बराबर। ए प्लस बी यस का सर। एक फिक्स्ड वैल्यू है। हाँ जैसे ही ए मिनिमाइज होगा बी, मैक्सिमाइज। लेकिन ए और बी से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? ओके सर। समझ रहे हो? डिपेंडेंसी जो आपसे पूछा गया उसका ए और बी पे है ही नहीं। सपोज दे माइट हैव आस्क्ड यू एनीथिंग रिलेटेड टू ए और बी, we would have हम्म taken that thing into consideration. What they are asking is the value of C. हम्म। ठीक है, ऑप्शन देख के ठीक नहीं किया है मैडम, कल को आप सही में सोच लो। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ नहीं गई सोच सर। सकते हो। नहीं हाँ मतलब हाँ। आपका जो क्वेश्चन है वो सी पे है और सी की डिपेंडेंसी ए बी पे नहीं है, क्योंकि ए बी एक ओके। फिक्स वैल्यू दे रहा है 28 माइनस सी। आपका अगर ए रिड्यूस हो रहा है तो बी इंक्रीज हो जाएगा। और मिनिमम का मतलब कभी भी जीरो तो है ही नहीं, हो सकता है ना एक हो मिनिमम, हो सकता है दो हो हम्म मिनिमम। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, ए को कम कर देंगे तो सी इंक्रीज हो, बी इंक्रीज हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। हम्म। तो इसलिए आंसर इज सी, लेस देन ए। ओके सर। Shall we go ahead? ठीक है सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Any other? 22. 22 बताने का है किसी को? नो सर। नो सर। जब बताना है। बता दूं? चलो बता दूं। हाँ। यार ये पता नहीं, मुझसे किसी ने तो पूछा था, मिस्टर वेदांत, इसका मैं प्योर जुगाड़ बता दूं क्या आपको, या पूरा सोल्यूशन चाहिए, या दोनों चाहिए? सो प्योर जुगाड़ ही बता दो। प्योर, ये दिमाग वाला बच्चा है। शॉपकीपर हाइड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय X%, gave X% discount. The price decreases by 3,000 because of this. Once again, the price of the article increases by X by 2%, decreased by X by 2%, finally sold for this. Initially कितना था प्राइस पता है क्या आपको? नहीं। A रुपीज ले लेता हूँ, कोई दिक्कत? नो सर। प्लस X% माइनस X%, हम्म। now it is A minus 3,000, कोई दिक्कत? नो सर। प्लस X by 2% minus X by 2%, and now it is 71280। यहां तक, कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? हाँ। यार एक छोटी सी बात बताओ, अगर X% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो 3,000 का गैप आ रहा है। हम्म। X की जगह X by 2% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो गैप कितने का आएगा? सर 1500। सॉरी, 1050। 1,500 के आसपास या उससे कुछ कम आएगा। थोड़ा सा हाँ। दिमाग लगा ना, X की जगह X by 2 किया तो आधा कर दूं। अब प्लीज ऐसा, जो बाकी लोग समझ रहे हैं ना, ऐसे मत लेने का कि बोले सर एग्जैक्ट कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन हाँ जल्दी कैसे सर। करने का। लगभग लगभग 1,500 के आसपास का ही कुछ डिफरेंस आना चाहिए मेरे हिसाब से, बराबर है? अब हो यस सकता है सर। 1,500 में 1,200 आ जाए, या 1,400 आ जाए, या 1,500 आ जाए, या ऐसा कुछ आ जाए। मैं एक्यूरेट नहीं पकड़ रहा, क्योंकि एक बार गलती से ऑप्शन को देख लिया होता तो ऑप्शन में गैप बहुत बड़ा बड़ा है। यस सर। अगर ये लगभग लगभग 1,500 का गैप है, इसको मैं 71,500 ले लूं,
तो 71,500 से ये कितना हो जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से मोटा मोटी ये 72-73,000 के आसपास कुछ होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ सर। उसमें और 3,000 ऐड करना। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए। बात यस ये सर। है कि इनिशियल प्राइस 72,000 हो सकती है। No, sir. आपकी ये नो वाली सर। प्राइस 72,000 से बड़ी आ नो रही है, सर। नहीं हो सकती? न्यू सर। हाँ। ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1,500 का। 1,500 से ज्यादा का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो नहीं हुआ होगा यहाँ पे। ये नहीं। मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, बराबर। हाँ तो ये 73,000 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये 76,000 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। यस सर। हटा दो, हटा दो, आंसर आ गया। ओके सर। क्लियर है? सर वैसे बेस्ट ऑप्शन से ये नहीं वाले तो। यस, 100%, बिकॉज इसका अगर क्वाड्रेटिक बनाओगे तो बहुत लेंथी जाएगा। मैं बता दूंगा वो तरीका भी, बट बहुत लेंथी जाने में बेटर नॉट टू गो विद दैट। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि यार आफ्टर 3,000 का डिक्रीमेंट वैल्यू, और उसके बाद एक फर्दर और डिक्रीमेंट 71,000 के आसपास आ रही है। तो 71 में अगर थ्री, केवल बीच वाले डिक्रीमेंट को हटा दो, केवल 3,000 इंक्रीज करूंगा ना, तो भी मेरा 72,000 तो एलिमिनेट हो गया। यस सर। और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था कि अगर x% पे 3,000 का डिक्रीमेंट है, तो x/2% पे 1,500 से कम का ही डिक्रीमेंट होगा, उससे ज्यादा का कभी नहीं हो सकता है। मतलब जो नेट चेंज है मेरे हिसाब से 4,500 से ज्यादा का कभी नहीं होगा। जो हाँ सर। नेट चेंज 4,500 का डिक्रीमेंट है, मतलब ये 75,000 समथिंग से 780। ज्यादा का कभी नहीं होगा। तो मेरे ये दो यस। ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए होते। आई वुड हैव गॉट द करेक्ट आंसर। क्लियर है? और किसी को पूरा टेक्निकल मेथड चाहिए तो जल्दी से बोल दीजिए, आई विल डू दैट। नो एनीवन? सर। No, sir. पक्का? शैल वी गो अहेड? Yes, यस sir. सर। चलो, सो दिस वाज सेक्शन 1। सेक्शन 2 पे आ जाइए जल्दी से। कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं बट स्किप करवाएं? So question number 7. बताने का है किसी को? Yes, sir. Sir, हाँ, कुछ बोल रहा है? Yes, sir. yes sir बताना है। केवल ये ही बोला है ना? ठीक, बता देते। Two runners, Ram and Ravi, simultaneously start running on a circular track. They run in the same direction. Ram at 9 meter per second, Ravi at s meter per second. If they cross each other at exactly 2 points on the circular track, as s is a natural number, how many values s can take? Any idea कैसे करेंगे? किसी को भी गलती से भी छोटा मोटा कुछ आइडिया हो तो? सर इसमें हम जैसे 9 है तो कुछ वैसे, और इंटीजर बोले तो वैसे कुछ एलसीएम टाइप करके कर सकते हैं क्या? जैसे कि एक की स्पीड 9 है। 9 में तो जैसे 3 एक बार लेके देख ले और वैसे मैंने एक बार ट्राई किया था। 3 लेके देखा Sir, तो बैठा है? इसमें नहीं। नहीं बैठा? क्या बात करूं, बैठेगा 3 पे तो। सर मैंने तो ट्राई किया तो हुआ नहीं था। मेरा आंसर 4 आया था, मैंने 4 मार्क किया था, बट 4 गलत है, 5 है। नेक्स्ट टाइम +1 करके मार्क करना। और कोई कुछ बोल रहा था बीच में, आई गेस। सर इसमें स्पीड 9 से तो कम ही लेके करेंगे ना। क्यों, ज्यादा क्यों नहीं ले सकते? हाँ मतलब 2 केसेस बनाएंगे। ठीक है। So हाँ L तो divided by x minus y वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या? कर सकते हैं ना। किसी को बैठ रहा है क्या? कैसे करेंगे यार? नहीं बैठ रहा? चलें डिस्कस कर लें। यस सर। Yes, sir. यस सर। बढ़िया है। यार एक बात बताओ, दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर मीटिंग एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक। इस लाइन का क्या मतलब है? Difference of rounds equals to 2. यहां से उन्होंने शुरू किया था,
अगली मीटिंग कहाँ पे होगी? एनीवन? हाफ कवर करने से पहले। मतलब यहाँ पे कहीं, इधर? हाँ। एनीवन एल्स? सर एक ही राउंड तो मिनिमम कवर हो ही जाएगा, उसके बाद ही मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ पे? कहीं पे भी मिले, मैं पूछ रहा हूँ मिलेंगे कहाँ पे? पर कहीं पे तो मिल जाएंगे ट्रैक पे। सही बात, गलत। लेट्स ट्राई टू सर अंडरस्टैंड। उसके जस्ट ऑपोजिट। यस, केवल 2 मीटिंग पॉइंट होंगे। आप जब भी एक सर्कुलर ट्रैक पे रन करते हैं तो आपके जो मीटिंग पॉइंट्स हैं जितने भी होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेट्स अज्यूम मैं बोलता हूँ 4 मीटिंग पॉइंट है, तो ये ही 4 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ठीक है। मैं बोलता हूँ 8 मीटिंग पॉइंट है, तो ये 8 मीटिंग पॉइंट ही होंगे और कुछ नहीं होगा कभी भी। मैं बोलता हूँ 6 मीटिंग पॉइंट है, ये 6 मीटिंग पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब ये इक्वल इक्वल गैप पे होंगे हमेशा। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, सर sir. रीजन क्या है इसके पीछे वैसे? सॉरी? रीजन ऐसे यूनिफॉर्मली क्यों होगा ये वैसे? बराबर, अच्छा क्वेश्चन। लेट्स अज्यूम आप 600 मीटर का ट्रैक था, आप इस पॉइंट पे मिले विच इज 100 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके सर। मतलब अभी तक आपने 100 मीटर ट्रैवल किया होगा और दूसरे बंदे ने 700 मीटर ट्रैवल किया होगा। यस सर। जब दूसरा राउंड होगा, आपने 100 से 200 पे पहुंचे, वो बंदा कहां पे पहुंच जाएगा 700 से? 1400। 1400 कैसे आता है? 600, 1200, 1400, हम्म 200, ये 200 मिल गए। यस सर। सारे गैप्स इक्वी डिस्टेंट रहेंगे। हाँ हाँ। समझ में आया? अभी भी किसी का डाउट है तो वापस से पूछ लीजिए प्लीज। ये No, आ sir. गया। आ गया? एनीवन यस। हैविंग अ डाउट कैन आस्क अगेन प्लीज। एनीवन? सर इसमें डायरेक्शन मैटर करता है? नो मैम। In any of the directions on a circular track, the meeting points are always uniformly distributed. Even you can have a question like this: there is a track of 500, 2000 meters, and the runners are meeting for the first time at a distance of 400 from the starting point. How many distinct meeting points will be there? This can be one of the questions. निकाल लेंगे। हर 400 पे मिलते रहेंगे, 5 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स आने चाहिए। Yes, sir. ठीक है सर। चलो, तो ये जो एक्स्ट्रा डेटा ही रिमूव कर देता हूँ। अभी किसी को हिंट मिला कि कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गया क्या कि 2 मीटिंग पॉइंट होंगे तो वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट ही होंगे। समझ में आया क्या यार?